Good morning, friends. Today, I would like to share you some easy way how to remember the formulas for the different tenses. I have given through the slide. There are some formulas of This the video is tenses. recorded by Naikwadi First of all is Azhar simple Rahman Naeem present Akhtar tense. from Simple RC present tense. Mahim S means Municipal subject. Secondary School. V means verb. Into bracket 1 means verb's first form or the basic form of the verb plus object. This is the formula for simple present tense, subject plus verb first form plus object. In the same way, if we see present continuous tense, subject plus am, is or are. Am came with I, is comes with he, she or it, are come with all the plural subjects. So subject plus am or is or are plus verb ing form plus object. For example, I am writing a letter. I subject, am writing verbs ing form, object a letter. Right? Number 3, present perfect tense. Present perfect tense, when you are making present perfect tense, you have to remember this formula: subject plus have or has. Have come with I, you, we, they, and has come with he, she, it, or with any proper noun plus verbs third form, verbs past participle means go है तो वहाँ पर आना चाहिए go, went, gone. Gone is the third form of the verb plus object. If we see the example, I have written a letter. I subject have with I plus written verb third form or the past participle of the verb plus object is a letter, right? Last one is present perfect continuous tense. When you are making present perfect continuous tense, you have to remember subject plus have plus has plus been. You have to add the word been, been plus verb ing form plus object. For example, she has been playing hockey. She subject has then been verbs ing form playing, hockey is object. So in this way you must remember all the formula for present tense. There are some examples. I am fitting the cabinet. I am fitting the cabinet. I के साथ am है, fit का जो है ing फॉर्म इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये हमको मिलता है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है. उसी तरह से रामू कीप्स मनी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा हो गया? पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसी तरह से द बैंक हैज़ अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी, प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हैज़ लगा है. अनाउंस ये जो है थर्ड फॉर्म में है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो हैज़ आएगा अगर, तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एनिमल्स आर एन्जॉइंग फ्री लाइफ. आर एन्जॉइंग, yes, are and verbs ing form means present continuous tense. Next one is identify the tense. हाय फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने जो है इससे पहले के लेक्चर में जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था आप लोगों के लिए, उसमें हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस. काफ़ी अरसे बाद आज हम अगला टेंस देखने की कोशिश करेंगे स्लाइड्स के ज़रिए, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को लिखने का फॉर्मूला क्या है? ज़माने माजी जारी को सब्जेक्ट SUB, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्लस वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे. वॉज आएगा तमाम सिंगुलर्स के साथ और प्रॉपर नाउन के साथ, और वर आएगा तमाम प्लूरल वाले सब्जेक्ट्स के साथ, प्लस वर्ब का ing फॉर्म यूज़ करना है और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूला के बाद. एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आई वॉज जॉइनिंग जूम क्लास यस्टरडे. आई सब्जेक्ट, वॉज जॉइनिंग वर्ब, जूम क्लासेस यस्टरडे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. बराबर, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ. उसी तरह से वी वर हिटिंग द बॉल, वी के साथ वर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया मैंने ग्रीन में.
और वॉस को हाईलाइट किया है रेड में। तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल कहाँ करना है और वॉस का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, वर हिटिंग ये वर्ब रहेगा और द बॉल ये यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस। यू के साथ भी वर आएगा, यू वर ड्राइविंग अ कार। दे के साथ भी वर आएगा क्योंकि ये भी प्लूरल में है, दे वर एंजॉइंग द राइड। उसी तरह से ही वॉज मार्किंग द पॉइंट्स, शी वॉज एड्रेसिंग ऑडियंस, इट वॉज जंपिंग द वॉल। अगर कोई नाम भी हो जैसे कि राजू है, मीना है ना, राजू वॉज गोइंग होम, मीना वॉज गोइंग स्कूल, मीना वॉज कमिंग होम। इस तरह से जो है वहाँ पर भी वॉज का इस्तेमाल होगा प्रॉपर नाउन के साथ। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू में जिसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम तब्दील करें अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, रवि जोग्राफिया पढ़ रहा था, इस तरह भी आ सकता है। वो फुटबॉल खेल रहे थे, है ना, तुम तेज़ दौड़ रहे थे, वो बहुत अच्छी कहानी कह रहा था, इस तरह से भी कह सकते हैं। और वो फैक्ट्री जाती थी या फिर जा रही थी। तो पास्ट में जो काम जारी था, माजी में जो काम चल रहा था, उसके बारे में जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो उसको इस तरह से वॉज और वर का इस्तेमाल करके मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। अब यहाँ पर इन्हीं जुमलों को हम जो है इनका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। जैसे कि रवि वॉज रीडिंग जोग्राफ़ी, रवि जोग्राफ़ी पढ़ रहा था। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। यू वर रनिंग फास्ट, आप तेज़ दौड़ रहे थे। फिर ही वॉज टेलिंग वेरी नाइस स्टोरी, वो बहुत अच्छी कहानी सुना रहा था या कह रहा था। शी वॉज गोइंग फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जा रही थी। इस तरह से जो है ये कुछ सेंटेंसेस हैं। उसी तरह से और कुछ 3 सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है आपको समझने के लिए अच्छे से। जैसे कि अगर प्रॉपर नाउन रमेश नाम है तो उसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा, ये आपका कन्फ्यूजन दूर होगा इस सेंटेंस को देखने के बाद। तो रमेश कोई नाम रहेगा प्रॉपर नाउन, तो वहाँ पर आपको वॉज का इस्तेमाल करने का। जैसे हमने यहाँ पर किया है, रमेश वॉज क्रिएटिंग पोएम, रमेश नज़्म लिख रहा था, तख्लीक कर रहा था। आई वॉज़ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा था। मीना के साथ भी यहाँ पर वर्ब वॉज आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। मीना वॉज रिंगिंग द फ़ोन। यस बच्चों, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब अगला टेंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपलोड करता हूँ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो if you get little bit benefit also, and share to everyone. Okay students, thank you very much.